Yes, beta. We have started this chapter from trade to territory. In this chapter, I have discussed with you about the different governor journals. They came in India, and time to time they made many policies. And on the side by side, Mughal dynasty was ruling our country. And first company, East India Company, in 1600, they came in our country. The motive was this company was trade, but later on they annexed the different territories. And at that time, first area they annexed was Bengal. So the story of Bengal in the form of Battle of Plassey, I have explained you from Murshid Quli Khan to Ali Khan, and then Sirajuddaulah, how they Sirajuddaulah was defeated in the Battle of Plassey very intelligently by Robert Clive, and after him Mir Zafar, he made the Nawab, and after that again Mir Qasim, he became the Nawab, and in Battle of Buxar, and again he was after the Battle of Buxar, defeating the Battle of Buxar, again Mir Zafar was declared the Nawab, and after the death of Mir Zafar, company Robert Clive, they were declared as they were given the right of Diwani. Diwani का मतलब होता है right to collect taxes. And this right was given by Mughal emperor, because at that time the highest authority in our country was Mughal dynasty or Mughal emperor. And Mughal emperor, they installed different areas under their governors or different dynasties. So after the Battle of Buxar, then again Diwani right was very profitable for the East India Company, because now they were getting finance for their trading in India, and they needed money to build big forts, fortification, to buy products like cotton and silk in India. And with this, we can say that East India Company became more powerful. Clear? And after that, subsidiary alliance, I have discussed with you what was the motive of subsidiary alliance. According to this policy, Indian representatives will not keep their own army. They will be protected by the company's army. एंड इसके साथ कंपनी की आर्मी को रखने के लिए, उनके सोल्जर्स को रखने के लिए, उनको सैलरीज देने के लिए और उनके सारे एक्सपेंसेस का जो खर्चा होगा वो इंडियन किंग्स देंगे इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडरी फोर्सेस या सब्सिडरी मनी. और अगर वो सब्सिडरी मनी इनको ना दे पाए तो एज अ पेनल्टी उनका सारा जो एरिया होगा वो ब्रिटिशर्स जो हैं वो अनेक्स कर लेंगे. और इस पॉलिसी के अंडर भी ब्रिटिशर्स ने कितने ही एरियाज को अनेक्स किया. तो अब हम अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग मेथड्स पढ़ रहे हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अलग अलग एरियाज को सबजुगेट किया, अनेक्स किया, क्योंकि कंबाइन कंट्री जो थी उनके अंडर आने में बहुत टाइम लगा और स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने अलग अलग टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में किया. अवध नवाब जो थे, अवध के नवाब, देन हैदराबाद, इनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस जो है, पहले इनसे अलायंस किया और उसके बाद when they were not able to pay the money, then these areas were annexed by the Britishers. Now, next is about the tiger of Mysore, Tipu Sultan. The story is very interesting about the Tipu Sultan life. How Tipu Sultan, he, you can say, tried to protect his territory, Mysore. टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर जो थे, एंड इनका जो है वो जिसे कहते हैं डायनेस्टी, इनसे पहले इनके फादर थे हैदर अली. मीन्स टीपू सुल्तान के जो फादर थे हैदर अली, ही वॉज द किंग ऑफ मैसूर. देन हैदर अली की डेथ के बाद टीपू सुल्तान ही बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर, सदरन किंगडम्स की अगर हम बात करें. और इनका टाइम पीरियड क्या था टीपू सुल्तान का? रूलिंग टाइम पीरियड. नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर रूलिंग. यानी कि 1782 में जब हैदर अली की डेथ हुई तो 1782 के बाद 1799 तक टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के रूलर थे. ठीक है. और 1799 क्यों लास्ट लिखा है? बिकॉज 1799 में इनकी बैटल हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, एंड इन दैट बैटल ही फोर्ट वेरी ब्रेवली and he died, he was killed, and after that Mysore was captured by the East India Company. तो अभी हमने इनके बारे में जो है वो explain, I will explain about the story of Tipu Sultan. So you should know about the life of Tipu Sultan, how he fought and how he opposed the policies of East India Company, interfering policies of East India Company.
तो जब 1782 में टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के रूलर बने, तो कुछ देर उन्होंने ऑब्जर्व किया ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑलरेडी हैदर अली जो थे उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी हद तक ट्रेडिंग जो है रिलेशंस थे। लेकिन जब टीपू सुल्तान रूलर बने तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा, थैंक यू, फोन पे बात करना, हाँ जी, यस। तो जब टीपू सुल्तान रूलर बने तो उसके बाद 1785 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑब्जर्व किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी इंपोर्ट कर रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी, मेन थ्री थिंग्स थी जिनके ऊपर उन्होंने जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई। संदल जो होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट, संदल वुड मानी जाती है, जिसकी ट्रेडिंग के ऊपर टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया और बैन लगा दिया। देन पेपर एंड कार्डामम, ये तीनों चीज़ों के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो टीपू सुल्तान से कुछ कंसेशंस और रिलैक्सेशंस मांग रहे थे। बट टीपू सुल्तान ही स्टॉप द एक्सपोर्ट, उन्होंने इसका एक्सपोर्ट बंद कर दिया कि इंडिया से ये चीज़ें यूरोप नहीं जाएंगी, और अगर जाएंगी तो उसके लिए टीपू सुल्तान जो है जो पेमेंट वो चाहेंगे एज अ प्रॉफिट वो कंपनी को देना पड़ेगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने टीपू सुल्तान की इन डिमांड्स को मानने से मना कर दिया, और अल्टीमेटली टीपू सुल्तान ने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं बल्कि फ्रेंच, उस टाइम पर में हमारी कंट्री में फ्रेंच भी थे, पोर्टुगीज भी थे, तो टीपू सुल्तान ने बजाय कि ब्रिटिशर्स के साथ दे मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द फ्रेंच, एंड फ्रेंच दे आल्सो गेव सपोर्ट। उन्होंने फ्रेंच जो थे, फ्रेंच उस टाइम पर में फ्रेंच कंपनीज थी, दे गेव सपोर्ट टू टीपू सुल्तान, एंड टीपू सुल्तान ही मॉडर्नाइज हिज आर्मी। टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया विद द हेल्प ऑफ दीज फ्रेंच राइवल्स। अब ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको ये चीज़ जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुई कि टीपू सुल्तान जो है वो उनके अलावा दूसरे राइवल्स के साथ ट्रेड रिलेशन मेंटेन कर रहे। And during this time, many wars were fought between East India Company and Tipu Sultan. Basically, 4 wars. ये माना जाता है कि series of wars were fought by Tipu Sultan and East India Company army. And in the last battle, Battle of Srirangapatnam बोलोगे आप इसको, 1799, टीपू सुल्तान ब्रेवली ही फॉट, एंड 4 मई यानी कि 4 मई 1799 he died, and after this Mysore was captured by the Britishers. तो ये अल्टीमेटली हमने बताया कि मैसूर की स्टोरी कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर को कैप्चर किया। तो जस्ट टीपू सुल्तान जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कंसेशन जो है उनको नहीं दे रहे थे, रिलैक्सेशंस नहीं दे रहे थे। तो ट्रेड रिलेशंस जब और ज़्यादा जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव होने की बजाय और ज़्यादा जो है वो वर्स्ट हुए। देन टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने फ्रेंच जो सोल्जर्स हैं, फ्रेंच राइवल्स थे, उनकी हेल्प से अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया। बट स्टिल many wars were fought between Tipu Sultan and East India Company, and in the last battle Srirangapatnam 4th May 1799 Tipu Sultan he was defeated and he was killed, and after that Mysore was captured by the Britishers. अब जब मैसूर को कैप्चर कर लिया गया ब्रिटिशर्स ने, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने एक पुरानी डायनेस्टी यानी कि हैदर अली से पहले एक डायनेस्टी का मतलब होता है जो पुराने कुछ ऐसे उस पर्टिकुलर कोर्ट में कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ उन्होंने मिलकर जो है एक नया जो है वो रूलिंग एम्पायर जो है एस्टैब्लिश किया, और इस डायनेस्टी को क्या बोलते हैं, वॉडियार्स। न्यू डायनेस्टी वॉज इम्पोज, यानी कि मैसूर जो था वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, एंड उन्होंने क्या किया, वॉडियार्स एक नई डायनेस्टी थी, उनके किंग्स को जो है वो आगे मैसूर दे दिया ताकि ये पपेट से मैंने आपको बताया था, ताकि ये पपेट बन सके इन द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो वो चाहते हैं वो इनको दिला सके। बिकॉज इन द इनिशियल ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकली कंट्रोलिंग, वो सिर्फ मनी चाहते थे। उनका ये मानना था कि डायनेस्टीज या जो रूलर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालें, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी दे जस्ट नीडेड मनी इन एनी सेंस, वो मनी चाहे उनको जैसे भी मिले, और इसलिए स्टार्टिंग में उन्होंने पॉलिटिकली कंट्रोल जो नहीं किया, और मैसूर को जीत जाने के बाद वॉडियार्स जो थे उनको वहाँ के रूलर्स बना दिया, एंड अल्टीमेटली देयर मेन मोटिव वॉज टू गेन मोर मनी, मोर रिसोर्सेज फ्रॉम द एरिया। तो ये थी सारी मैसूर की स्टोरी। इसके अलावा नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मराठा पावर्स हमारी कंट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट जो हैं
मराठास कन्फेडरेशन मानी गई है। महाराष्ट्र, पुणे, तो मराठा की जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र, ठीक है, देन पुणे, तो ये सारे एरियाज हमारे माइंड में आते हैं। तो मराठा पावर को कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर किया। तो जिस टाइम पर में हमारी कंट्री में एक तरफ मुगल डायनेस्टी थी, तो दूसरी तरफ साइड बाय साइड मराठास वर आल्सो देयर, ठीक है, एंड दे वर कंट्रोलिंग द यू कैन से विंध्यास। विंध्यास कहाँ पे बच्चे? नर्मदा रिवर के आसपास का जो एरिया है, some parts of Gujarat and some parts of you can say Maharashtra, these were under the control of Marathas। और ये मराठास उस टाइम पर में इंडिपेंडेंट रूलर थे, ठीक है, एक तरफ मुगल डायनेस्टी थी और एक तरफ हमारी कंट्री में मराठास थे। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी हाउ दे कंट्रोल मराठास, तो ये अलग से स्टोरी है मराठास की, और ये बहुत पावरफुल रूलर माने गए उस टाइम में। एंड बहुत सी जो हम कहते हैं कि बैटल्स जो हैं वो लड़ी गई। तो देखा जाए, अगर आपने 7th में आपको याद होगा कि आपने बैटल ऑफ पानीपत पढ़ी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो थी वो 1526 में जो है वो हुई थी बिटवीन बाबर एंड लोधी, इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये सारा आपने 7th में पढ़ा। फिर सेकंड बैटल हुई हेमू एंड अकबर, ठीक है, हेमू और दूसरी तरफ से अकबर। देन थर्ड बैटल ऑफ मानी जाती है, थर्ड जो आपके जो है वो पार्ट ऑफ योर बुक है, दैट इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये किनके बीच में थी? मराठास वर्सेस दुरानी, अहमद शाह दुरानी जो अफगानिस्तान से। तो अभी तक हम ये कह सकते हैं कि 1761 में मराठास की जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठास दे वर डिफीटेड बाय द रूलर ऑफ अहमद शाह अफगान दुरानी, ठीक है। तो इनका जो मराठास का जो एरिया था वो अफगानिस्तान के कंट्रोल में था, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारी कंट्री में उस टाइम में एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैप्चर कर रही थी, दूसरी तरफ अफगानिस्तान रूलर जो थे वो भी हमारी कंट्री में अटैक कर रहे थे, ठीक है। तो मराठास जो थे दोनों तरफ से, एक तरफ से अफगानिस्तान रूलर्स और दूसरी तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों से ही वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है उसके लिए जस्ट ग्रुपिंग कर रहे थे। और जब मराठास को डिफीट कर दिया गया तो उनके जो एरियाज थे, दीज एरियाज वर कैप्चर्ड बाय अहमद शाह दुरानी, ठीक है। एंड एट दैट टाइम अब इनके पास बहुत से ऐसे मराठास थे जो पावरलेस हो गए थे, उनके पास उनके अपने एरियाज चले गए, और इस तरह से नाउ दे वांटेड देयर एरियाज बैक। अब वो एरियाज जो हैं वो वापस लाना चाहते थे, और इसीलिए कुछ मराठा रूलर जो पुरानी किंगडम थी या पुराने जो किंग्स थे, उन्होंने मिलकर एक कन्फेडरेशन बनाई। इस कन्फेडरेशन को कहते हैं अलायंस। यानी कि अब ये जो मराठा किंग्स थे, इनके पास कुछ एरियाज जो बच गए थे, उन एरियाज के साथ मिलकर इन्होंने एक अलायंस बनाई जिसको कहते हैं कन्फेडरेशन और अलायंस। तो अब ये कौन कौन से ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने मिलकर अलायंस बनाई थी? अब वो अपनी पुरानी जो एरियाज हैं दुरानी से वापस लेना चाहते थे, एंड साथ ही साथ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में भी, मतलब उससे भी वो एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहते थे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज उस टाइम पर में बहुत फेमस थी मराठास की, सिंधिया, देन होलकर, गायकवाड़, भोंसले। तो ये सारे मराठी नेम हैं, आपने ये सारे मराठी नेम्स के बारे में सुना होगा, सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले, देन होलकर, ये सारे जो हैं वो मराठास नेम। ये डायनेस्टीज थी, इनके अपने अपने किंग्स थे, और इन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाई, और ये अलायंस जो थी वो अहमद शाह के अगेंस्ट थी। वो अलग बात है कि अहमद शाह ने इनको हरा दिया और बाद में इनके कुछ एरिया जो थे वो अफगान रूलर्स के अंडर थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों से ही, मराठास के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ, दोनों के साथ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा से भी एरिया लेना चाहती थी, और जिसे हम कहते हैं अफगानिस्तान जो रूलर्स हैं उनसे भी एरिया लेना चाहते थे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर में हमारी कंट्री में एरियाज को अनेक्स करने का या सब्जुगेट करने का कितना ज़्यादा लंबा प्रोसेस था कि दीज यू कैन से इन्वेडर्स दे कीप ऑन अटैकिंग द डिफरेंट टेरिटरीज। और बहुत इंपॉर्टेंट मराठास की अगर बात की जाए, पर्सनैलिटीज़ की बात की जाए, तो महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस, ये उस पर्टिकुलर टाइम पर में बहुत इंपॉर्टेंट मराठा सोल्जर्स थे। एंड ये जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में बहुत ब्रेवली इन्होंने जो है वो लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में जब
ये कन्फेडरेसी उन्होंने बनाई, एक अलायंस बनाई, ठीक है। तो काफी हद तक हम कहते हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए और दुरानी ने इनके एरियाज को ले लिया। लेकिन उसके बाद मराठास को फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बैटल जो है वो लड़नी पड़ी, यानी कि बैटल ऑफ पानीपत के बाद नेक्स्ट जो बैटल है, बैटल 1782, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, यानी कि 1761 के बाद मराठास और दुरानी के बीच में जो है वो बैटल हुई, और 1761 के बाद नेक्स्ट जो बैटल, इंपॉर्टेंट बैटल हुई मराठास के बीच में 1782, और ये मानी जाती है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो वर्ड मीन्स, एंग्लो यहाँ पे वर्ड है ईस्ट इंडिया कंपनी, एंग्लो, यानी कि जब भी आप कोई भी वर्ड पढ़ते हो ना, एंग्लो, एंग्लो मीन्स ये जो वॉर थी ये ब्रिटिशर्स के साथ थी या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कौन से ईयर में हुई? 1782। लेकिन इसका कोई ऐसा रिजल्ट नहीं निकला, कोई क्लियर विक्ट्री नहीं, और मराठास और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक ट्रिटी साइन हुई। इस ट्रिटी को कहते हैं ट्रिटी ऑफ सालबाई। कौन से ईयर में साइन हुई थी? 1782, ट्रिटी ऑफ सालबाई। सालबाई ट्रिटी का मतलब क्या है कि ब्रिटिशर, मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में या कंपनी के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उनके बेसिस के ऊपर उन्होंने आपस में लड़ाई बंद कर दी, और कुछ देर के लिए बैटल जो है वो बंद हो गई, लेकिन इसका कोई क्लियर कट विक्ट्री जो है वो नहीं हुई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर हम जो कहते हैं कि फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में जो रिलेशंस थे और ज्यादा वर्स्ट होते गए, एंड फिर सेकेंड मराठा एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो लड़ी गई बिटवीन मराठास एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। और इस सेकेंड जो एंग्लो मराठा वॉर थी, इसमें विनर जो है वो मेन जिसे हम कहते हैं फायदा जो है ब्रिटिशर्स को क्या हुआ? दे गेन द कंट्रोल ऑफ सम एरियाज ऑफ ओडिशा, आगरा एंड सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली। ओडिशा, आगरा और दिल्ली के कुछ एरिया जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गए, ठीक है। तो ये थी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड, फिर से आने वाली जनरेशन, फिर से मराठास, अब हम नेक्स्ट सेंचुरी यानी कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये जो है वो वॉर हुई थी 1817 से 1819, ठीक है। इस वॉर में पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा पावर जितने भी थे, सिंधियाज, होलकर्स, उनको पूरी तरह से क्रश कर दिया, एंड ऑल द एरियाज ऑफ दीज मराठास वर यू कैन से कैप्चर्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस तरह से मराठास की जो पावर्स थी वो 1819 तक आते आते उसको काफी हद तक कर्व कर दी। तो ये जो पूरा आपने अलग अलग जो अपने एग्जाम्पल है, ठीक है, सेकेंड जो मराठा वॉर है इसका डेट है 1803, 1805, ये कुछ पर्टिकुलर ईयर्स इन सेकेंड एंग्लो वॉर, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में जो मराठास थे उन्होंने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो एक एजुकेशन दी है अफगानी रूलर्स को भी और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी। तो जैसे जैसे इन डायनेस्टीज के आगे जैसे फादर हैं, उनके बाद उनके सन किंग बनते गए, 1782 से लेकर आगे 1819 तक मराठास जो है वो बहुत पावरफुल रहे हमारी इंडियन हिस्ट्री में, और उन्होंने अपने एरियाज जो हैं वो उनको जो है वो इजीली प्रोटेक्ट करने में अफगानीज के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत ही वॉर्स, सीरीज ऑफ वॉर्स जो हैं वो लड़ी गई। एंड इन द एंड हम ये कह सकते हैं कि टोटल कंट्रोल जो था मराठास के पास, जो भी एरियाज थे, दीज एरियाज नियर द विंध्यास वर कंट्रोल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी अप टू 1819, यानी कि 1819 तक मराठास के जो भी एरियाज थे, काइंड ऑफ महाराष्ट्र, कुछ पार्ट्स जो थे वो उड़ीसा के पार्ट, कुछ पार्ट्स आगरा के, कुछ पार्ट्स दिल्ली के, दीज ऑल एरियाज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये है सारा वॉर विद मराठास, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट, अब साइड बाय साइड जब हमारी कंट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, दे वर मेकिंग वेरियस काइंड ऑफ पॉलिसीज, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है सब्सिडरी अलायंस। तो एक और पॉलिसी बहुत फेमस हुई इस टाइम पर में, पैरामाउंट सी।
मतलब क्या होता है? सुप्रीम। कौन सुप्रीम बनना चाहता है? जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पर में, उससे हमारी कंट्री में मुगल डायनेस्टी सुप्रीम थी, लेकिन अब इस टाइम तक आते आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने आप को सुप्रीम अथॉरिटी मानते थे, सुप्रीम पावर। ठीक है, अल्टीमेटली देयर मेन मोटिव, ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मोटिव क्या था? टू गेन सुप्रीम पावर ऑन ऑल द डिसीजंस। इंडिया में जितने भी डिसीजन हो रहे हैं ट्रेड के या पॉलिटिकल, उन सब में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सुप्रीम पावर या एक जो है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो होना चाहिए। और इसका जो है वो मेन क्रेडिट जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल, ठीक है, तो वो ये नई पॉलिसी लेकर आए। इस पॉलिसी को कहा जाता है पैरामाउंसी। इनके अकॉर्डिंग, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के अकॉर्डिंग, पैरामाउंसी का मतलब क्या था? दैट कंपनी अथॉरिटी वाज सुप्रीम, कि कंपनी की अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम होगी। विल बी सुप्रीम, ठीक है, कंपनी की अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम होगी, एंड कंपनी के पास हर वो पावर होगी कि जिससे वो क्या कर सकते हैं? किसी भी इंडियन स्टेट को अनेक्स कर सकते हैं। पावर टू अनेक्स, अनेक्स का मतलब होता है कंट्रोल, एनी इंडियन स्टेट और किंगडम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी जो है वो अपने आप को इतनी पावरफुल मान रही थी कि दे वांट दैट एनी एरिया शुड बी अनेक्स्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी वेरी इजीली। एंड इसके लिए इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो एग्जांपल है कर्नाटका। कर्नाटका का एक एग्जांपल है कि कर्नाटका का जो एक एरिया था किट्टूर, पहले मतलब कर्नाटका में था, उसका नाम था किट्टूर। इस एरिया को कंट्रोल करने वाली क्वीन थी, उसका नाम क्या था? रानी चेन्नम्मा। ठीक है, तो ब्रिटिशर जो थे वो इजीली इस एरिया को अनेक्स करना चाहते थे, और उन्होंने क्या किया? अपनी आर्मी को भेजकर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्मी भेजी और किट्टूर एरिया में रानी चेन्नम्मा की आर्मी के साथ इनकी फाइट हुई, और रानी चेन्नम्मा ने रिवोल्ट किया। रिवोल्ट का मतलब होता है कि अगर कोई हमारे इंडिया में कोई किंग है या क्वीन है, कंपनी कैसे उनको जो है वो सब्जुगेट या अटैक कर सकती है। और अटैक करके जो रानी चेन्नम्मा है उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया 1824। In 1824 she was arrested and 1829 she died। ठीक है, यानी कि जब उनको 1824 में अरेस्ट कर लिया गया तो रानी चेन्नम्मा के ही एक इम्पॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं कि उनके अंडर एक और पर्सन थे, उनका नाम था रैयन्ना। ठीक है, क्योंकि साउथ सदर्न नेम है ये रैयन्ना, ही आल्सो रिवोल्टेड, और उनको भी 1830 में हैंड टिल डेथ यानी कि फांसी की सजा दे दी गई, क्योंकि वो रिवोल्ट कर रहे थे। रिवोल्ट का मतलब क्या होता है कि वो नहीं चाहते थे कि उनका एरिया जो है वो ब्रिटिशर्स अनेक्स करें। और इस तरह से काफी जो किंगडम थी, किंगडम्स को पैरामाउंसी की पॉलिसी के अंडर ब्रिटिशर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया। यानी कि ऐसी बहुत सी छोटी छोटी रियासतें, बहुत सी छोटी छोटी किंगडम्स जिनको ब्रिटिशर्स अटैक करके उनको अपनी कंपनी का पार्ट बनाना चाहते थे, क्योंकि उन एरिया से उनको रेवेन्यू या सोर्सेज या हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंस जो है वो ज़्यादा मिलने के चांसेस थे। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट पैरामाउंसी का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट रैंक, यानी कि कंपनी चाहती थी कि हाईएस्ट रैंक डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इनके पास हो। और उस पर्टिकुलर टाइम पर में कंपनी के गवर्नर जनरल कौन थे? हेस्टिंग्स। और उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि कंपनी शुड हैव अथॉरिटी दैट इट विल बी सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब होता है कि कंपनी का डिसीजन सुप्रीम होगा टू अनेक्स एनी इंडियन स्टेट, वो किसी भी इंडियन स्टेट को अनेक्स कर सकते हैं बाय कंकरिंग द लैंड, उनकी लैंड के ऊपर अटैक करके। एंड कर्नाटका में एक एरिया था किट्टूर, एंड in 1824 Rani Chennamma, she was arrested because she was a queen of that area, and she fought very bravely, and in 1829 she died। एंड आफ्टर रानी चेन्नम्मा के बाद उनके एक और लोकल उनके अंडर जिसे हम कहते हैं कि एक पर्सन थे, उनका नाम था रैयन्ना, जो अपनी लैंड को ब्रिटिशर्स को नहीं देना चाहते थे। बहुत सी ऐसी स्टोरी है, जैसे आपने झांसी की स्टोरी पढ़ी कि रानी लक्ष्मी आल्सो फॉट वेरी ब्रेवली because she was not interested to give their territory to Indians, these East India Company। And 1830 Raiyanna also hanged till death,
and after that Kittur comes under the policy of paramountcy and East India Company control the area. So बहुत से ऐसे एरियाज, बहुत से ऐसे जिसे हम कहते हैं कि कंट्री में कुछ ऐसे टेरिटरीज थी जिन टेरिटरीज को गवर्न किया गया और बहुत सी पॉलिसीज बनाकर उन एरियाज को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर लाया गया, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अबाउट द रूल ऑफ अफगानी पाकिस्तान, सॉरी नॉर्थ वेस्ट एरियाज। ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक मेजर चैलेंज था नॉर्थ वेस्ट एरियाज को प्रोटेक्ट करना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अगर हम अपनी इंडिया की बात करें ना तो हमारे इंडिया में नॉर्थ वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान है, अभी पाकिस्तान है, इवन पंजाब का जो एरिया है वो भी नॉर्थ वेस्ट की तरफ आता है। तो यू नो एट दैट टाइम पंजाब वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ये अब 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जब वो अलग अलग टेरिटरीज को अनेक्स कर रहे थे, तो इस पैरामाउंसी की पॉलिसी के अंडर ब्रिटिशर्स नाउ दे वांटेड एरियाज ऑफ पंजाब, ठीक है। अब पंजाब का एरिया उस टाइम में महाराजा रंजीत सिंह के अंडर था एंड महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो अपने इस टेरिटरी के इंडिपेंडेंट जो है वो रूलर, बट ईस्ट इंडिया कंपनी दे वांटेड टू अनेक्स पंजाब, पंजाब को अनेक्स करना चाहते थे। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान यानी कि अफगानिस्तान जो एरिया है उस एरिया से बहुत से रूलर्स उस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फाइट होती थी एंड एट दैट टाइम दे वर आल्सो वरिड कि रशिया जो है वो इंडिया पे अटैक ना करे या ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक ना करे। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर्थ वेस्ट के सभी एरियाज को कंट्रोल करना चाहती थी। और इसके अंडर कौन कौन से एरियाज को कंट्रोल किया गया, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक किया अफगानी रूलर्स के ऊपर, दे अटैक्ड ऑन अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के बहुत से एरियाज को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑक्यूपाई किया और उनको अपने एरिया का पार्ट बनाया। देन सिंध, सिंध एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था। सिंध वॉज आल्सो टेकन इन 1843। 1843 में सिंध जो है, जो अभी पाकिस्तान में है, उसको अपनी टेरिटरी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पार्ट बनाया। एंड फाइनली मेनी बैटल्स वर फॉट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पंजाब, फॉर एग्जाम्पल महाराजा रंजीत सिंह, जिसको हम एंग्लो सिख वॉर कहा जाता है। मैनी वॉर्स वर फॉट एंड इन 1839 महाराजा रंजीत सिंह डाइड, उनकी डेथ हो गई। एंड फिर भी महाराजा रंजीत सिंह के बाद भी कंपनी को बहुत टाइम लगा पंजाब को पूरी तरह से अनेक्स करने में एंड फाइनली 1849 पंजाब वॉज टोटली अनेक्स इन द टेरिटरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मैंने बच्चा आपको बहुत सी स्टोरीज बताई हैं अलग अलग एरियाज की। हमने स्टार्ट किया था अवध, देन हैदराबाद, देन उसके बाद फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बहुत से ऐसे एरियाज, मराठास, देन मैसूर, एंड इसके बाद हमने कर्नाटका का कुछ एरिया जो है। तो इंडिया के हर पार्ट की अपनी स्टोरी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ही टाइम पीरियड में सभी एरियाज को कंट्रोल नहीं किया। इट टुक मैनी ईयर्स टू कंट्रोल द डिफरेंट डिफरेंट एरियाज इन आवर कंट्री। तो पंजाब की अगर बात करें तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पंजाब की बात करें तो पंजाब के जो नॉर्थ वेस्ट एरियाज, अफगानिस्तान, एक मेजर कॉम्पिटिशन था ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगानिस्तान, ठीक है। और अफगानी रूलर्स को जो है हराने के बाद कंपनी ने अफगानिस्तान के पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल किया ताकि अफगानिस्तान से कोई भी फॉरेन पावर इंडिया पे ना आ सके। देन इसके बाद सिंध जो पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट एरिया था उसको कंट्रोल किया गया 1843 में। उसके बाद पंजाब को कंट्रोल किया 1839 में। महाराजा रंजीत सिंह ही वाज किल्ड एंड डाइड एंड आफ्टर दैट 1839 से लेकर 1849 it took many years but East India Company in 1849 subjugated the empire and controlled the Punjab territories. And with this we can say that many policies and many, you can say, new rules and regulations enable the East India Company to control the different territories of India. Clear?